again on the YouTube channel of TechUp Gate Classes. This is all about me, and we were studying about the machining and the machine tool operations. Okay, so in the last lecture number 16, we studied about the types of the operations, and we saw uh, some of the terminology that is affiliated with the time calculation. Okay, the types of operation that was all that is based on the what types of the uh, milling machine we are using and what types of the cutter we are mounting on that. Okay, so today in the lecture number 17 we are going to discuss about the numerical problems on the machining time and time calculation, and we'll also see the concept of the uncut chip thickness. And is last time we stopped up to the terminology only. Okay, so that from that only I will start and we'll see the time calculation part. Okay, so once again I welcome you all on the Let's Crack the Gate along with the TechUp faculties, and these are our social media platforms, so you can follow us, and if you have any queries then you can write to us on this mail ID. Okay, so let's start. So these are the things that we have already done in the last last lecture. So I'm just briefing you about that. That is D is the depth of cut we are taking. Width is the W is the width of cut. F is the feet, which is representing by the capital F. That is a feet that we are calculating in mm per minute. And there is another feet term that is small f we are representing with that. So this feet is nothing but the per tooth. Okay, so that is we are representing in either like if sometimes it is done that feet per tooth, that will be in mm. So please keep in mind. By the way, sometimes this thing is also available. Okay, maximum time this is available only. Okay, but these feet we are calculating in per tooth. Okay, Z is the number of teeth, V is the cutting speed which is affiliated with the tool only, and we also calculated this MRR, which is a material removal rate, that is WD into capital F. Okay, now today we are going to discuss about the time calculation part for the horizontal and the vertical milling machine. So first I'm taking the same. This is this example. Okay. Sorry. This is your cutter. Okay. And what we are doing basically, initially what we are doing is we are giving some depth of cut. This is a depth of cut that we are giving initially. Okay. And then we are okay. Sorry. This is, okay. Initially, we are keeping the tool over here. Okay, and just we are assuming that this is the length of the workpiece. Okay, and we are taking as the same the like what how we are calculating the machining time, that is total length. Okay, so the total length at machining time will be equals to total length upon how we are calculating for the previous one, that is f into m, but here f is the feet mm per tooth. Okay, so that number of teeth also we are multiplying with that, so that will become feet in mm, and n is the rotational speed. Okay, so total length is nothing but it is the approach plus over travel plus small l, that is the length of the work piece. ये तो हम लोग देखते ही थे, बट इसके अलावा इसमें एक टर्म और यूज कर रहे हैं हम लोग, दैट इज ऑल्सो अप्रोच. देखिए अब अभी जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें स्मॉल ए और ओ को नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं. ठीक है, तो आपका ओवरऑल जो रहेगा दैट इज एल प्लस अप्रोच. ये स्मॉल ए क्या है, कैपिटल ए क्या है, ये मैं आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, बट अभी मान के चलिए दैट इज स्मॉल एल प्लस अप्रोच we are giving in the beginning and approach we are giving at the exit. Okay, so inlet and exit, that is same approach we are giving, matlab same approach and same over travel. So can I write 2a? So this will be l plus small l plus 2a upon f z into n. now देखिए l जो है this is the length of the work piece, f आपको पता ही है, z आपको पता है, n आपको पता है. what is this approach is that we are going to calculate. ठीक है, तो इसके लिए what we have to do is
देखिए दो कंडीशंस हैं, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए फर्स्ट आई कैन कीप द टूल लाइक दिस। ओके, ये आपका टूल है, उस पे आपका वर्क पीस माउंटेड है, सॉरी स्पिंडल है, उसके ऊपर कटर माउंटेड है, देन यू आर दिस इज योर वर्क पीस। ठीक है, अगर मान लीजिए इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है तो आप ऑल द टाइम यू विल नॉट डू लाइक के मतलब वी आर यू आर कीप लीविंग सम डिस्टेंस सो दैट इट विल टेक द टाइम, ऐसा तो करेंगे नहीं। ठीक है, सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर जस्ट ब्रिंग नियर टू दिस वन, नियर टू दिस कटिंग एज। ठीक है, तो मैं इसके लिए ये फिगर बना देता हूँ। ठीक है, सो नाउ दिस इज द डायमीटर, सॉरी दिस इज रेडियस दैट इज d by 2। ठीक है, दिस इज ये जो है आपका दिस वन, दिस इज नथिंग बट द डेप्थ ऑफ कट, नाउ यू कैन सी। ठीक है, नाउ यू कैन से दिस इज डेप्थ ऑफ कट, हाउ मच, दिस इज नथिंग बट, क्योंकि देखिए अप्रोच जो है यहाँ पे हम लोग क्योंकि आपका हम लोग इनिशियली क्या कर रहे थे, यहाँ या तो हम इस तरह से रख सकते हैं या फिर हम लोग इस तरह से रख सकते हैं। अगर आपको सिंपली मशीनिंग करना है देन यू कैन कीप दिस टूल ओवर हियर लाइक दिस, मतलब ये आपका टूल है यहाँ पे इनिशियली, एंड यहाँ से लेके आप मूव करेंगे टुवर्ड दिस साइड, तो यहाँ तक आपने मूव किया देन मशीनिंग हो गई। बट अगेन देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट जो भी चिप आपसी चिप रिमूव हुई है दैट कैन नॉट, दैट विल नॉट ब्रेक। तो आप क्या करते हैं इनिशियली यहाँ पे कुछ एक अप्रोच ले लेते हैं और यहाँ पे कुछ ओवर ट्रेवल ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कंसिडर करके चल रहे हैं कि जो अप्रोच है वही ओवर ट्रेवल है, सो दिस विल बी ट्वाइस। नाउ ये अप्रोच कहाँ से कैलकुलेट करते हैं कि मान लीजिए ये जो टूल है, यहाँ पे जो टूल है इस टूल को हम बैक साइड में शिफ्ट कर लेते हैं, यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं। तो नाउ वी आर कैलकुलेटिंग दिस अप्रोच फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्पिंडल, ओके, और द सेंटर ऑफ द कटर। तो ये आपका सेंटर है, मतलब जो टोटल लेंथ ट्रेवल होगी वो हम लोग काउंट कर देंगे सेंटर टू सेंटर। सेंटर टू सेंटर का मतलब है कि मान लीजिए यहाँ पे आप इसको कुछ ओवर ट्रेवल देंगे तो ये यहाँ पे मूव करेगा। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है दिस इज टोटल लेंथ, कैपिटल एल। ठीक है, नाउ दिस कैपिटल एल कवर दिस स्मॉल एल व्हिच इज द लेंथ ऑफ द वर्क पीस, this is approach and this is also we are saying that same, both are same, so this is also a capital A. Now we are calculating this one, okay, so this A we are calculating this one, fine. So when we are calculating this one, so this is the thing which is an approach। ठीक है, ये आपका approach है। now how much this will be, this up from here, from here to here, this is the capital D by 2 and this is half, this is D, small d, so this will be like कैपिटल D by 2 माइनस स्मॉल d। ठीक है, तो आपको ये कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे दिस इज O, दिस इज A एंड दिस इज B। ठीक है, तो A B आपको कैलकुलेट करना है, सो A B विल बी इक्वल्स टू AB square will be equals to, देखिए ये 90 डिग्री है, so this is hypotenuse and this is perpendicular, so this will be d by 2 whole square minus d by 2 minus small d whole square, so this will be like d square by 4 minus d square by 4 minus d square plus d into small d। ठीक है, so this will be cancel out। AB क्या है आपका approach, so this approach square will be equals to small d कॉमन ले लीजिए, so this will be capital D minus small d, so this approach will be equals to root square small d into capital D minus small d। ठीक है, तो ये जो है आपका अप्रोच हो गया। मान लीजिए कि अगर कोई क्वेश्चन आए तो उसमें आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अप्रोच को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर गिवन है तो ठीक है, और गिवन है तो भी हमें क्या करना है, फिर भी हमें ये जो हम अप्रोच कैलकुलेट कर रहे हैं ये हमें यहाँ जो हमने फॉर्मूला कैलकुलेट किया है वो वैसे आपको करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो आपको गिवन है सिर्फ आपने उसको रख दिया वो वैल्यूज को, नहीं, यू हैव टू कैलकुलेट दिस ए वैल्यू एज वेल, ओके, बिकॉज ठीक है, यहाँ पे अभी तक इतना ही समझते हैं, बाकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में समझ लेंगे। तो ठीक है, ये हो गया आपका पहला हॉरिजॉन्टल मिलिंग के लिए। आप इसको स्लैब मिलिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, आप इसको साइड या फिर फेस कटर भी कह सकते हैं, साइड एंड फेस कटर, सॉरी फेस मिलिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, नाउ इट डिपेंड्स। नाउ ये तो हो गया आपका हॉरिजॉन्टल वाला। नाउ वर्टिकल की बात कर लेते हैं। वर्टिकल में क्या है, आपका जो स्पिंडल है वो वर्टिकली माउंटेड है। ठीक है, वर्टिकली ओवर दैट द टूल इज आल्सो माउंटेड वर्टिकली। तो आपका क्या है कि इसमें दो कंडीशंस होती हैं कि पहली जो विड्थ है आपकी,
देखिए अगर मान लीजिए कि आपका ये विड्थ जो है ये डायमीटर के इक्वल है वर्क पीस के, तो क्या है कि आप वर्क पूरा सिलेंड्रिकल पोर्शन को मान लीजिए कि ये आपका टूल है, ठीक है, और ये आपका वर्क पीस है। अगर मान लीजिए कि इसकी डायमीटर और इसका विड्थ सेम है, तो क्या करिए आप सिंपल सा यहाँ पे होल्ड करिए एंड यू आर जस्ट दिस इज रोटेटिंग एंड जस्ट रीच्ड अप टू हियर। तो मान लीजिए मैं यहाँ से भी कांटेक्ट में रख सकता हूँ कि मान लीजिए ये मेरा एज टीथ है, तो मैं इस टीथ को जस्ट कांटेक्ट में कर सकता हूँ। ठीक है, ये जो कंडीशन है, ये वाली जो कंडीशन है, तो on the basis of that we are taking two condition के first condition जो है when the width is greater than equal to d by 2 and less than equal to d, ठीक है, तो in that case the approach will be equals to capital D by 2। जो रीजन है वो यही है कि मान लीजिए कि ये आपका यहाँ पे है, दोनों अगर सेम है या फिर इससे कम है, तो आप सिंपल सा यहाँ पे रख सकते हैं एंड यू कैन मूव लाइक दिस। ओके, बट बाय द वे सेकंड जो कंडीशन है, दिस इज लाइक विड्थ जो है दैट इज लेस देन d by 2। सेम इसके लिए भी ये कर सकते हैं, बट अननेसेसरी क्या है कि आपकी अगर विड्थ बहुत ही स्मॉल है और आपका डायमीटर ज्यादा है, तो अननेसेसरी आपको इसको सेंटर में रखने की कोई जरूरत नहीं है। सो फॉर दैट वी हैव टू मतलब जो हमारी अप्रोच होगी टू गेट दिस वैल्यू, दैट विल बी द सेम what we have done in the last time, मतलब जो horizontal के लिए जिस तरह से किया है हमने, we have to give the same approach like this is the width, ठीक है। अब आपका क्या है, ये दिस इज योर वर्क पीस, सॉरी दिस इज योर टूल, ठीक है। अब ये आपका ऑटोमेटिकली क्या हो गया, विड्थ जो है लेस देन d by 2 हो गई, तो ये d by 2 है आपका, तो इससे आपको शो करना पड़ेगा दिस इज लेस देन d by 2। तो आपका ऑलरेडी हाफ पोर्शन ही जो सर्कल का है दैट विल कवर कंप्लीट ऑफ दिस वन। Okay, so if this will complete, then this will be the approach। Okay, if this will be the approach, then this is d by 2 and this is how much, this will be like d by 2 minus w। ठीक है, so same way what you have done in the last time, this is o, this is a and this is b, so triangle oab or oba, that will be equals to that is approach square, this is approach I'm saying, this is approach square will be equals to capital D by 2 whole square minus small d by 2 minus w whole square। ठीक है, तो same the value you will get the same value। Okay, so I am not doing the same again and again। ठीक है, so this will be the approach। ठीक है, तो ये प्लीज ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए अगर आपकी width is greater than or greater than d by 2 और less than d है, less than equal to d है diameter, then we will directly put the value of d by 2 in case of vertical, और अगर आपका नहीं है then you will go for this formula। फाइन, तो अब हम प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम, देखिए गेट ईएस की प्रॉब्लम थोड़ी इजी होगी, हालांकि गेट की भी ज्यादा टिपिकल नहीं है क्योंकि ये भी गेट का ही क्वेश्चन है। A milling cutter having 8 teeth, Z की वैल्यू आपको गिवन है, is rotating at 150 rpm, so value of n is given to you। If the feet per tooth is 0.1 mm, मतलब आपको स्मॉल f की वैल्यू गिवन है। ठीक है, the table speed in mm per minute, देखिए टेबल स्पीड, टेबल पे क्या माउंट करते हैं हम लोग, वर्क पीस, तो वर्क पीस को क्या देते हैं हम लोग, फीट, तो इसका मतलब आपको फीट फाइंड आउट करना है, दैट इज इन मीटर mm पर मिनट, ये फीट नहीं। ठीक है, तो f इक्वल्स टू क्या होता है आपका, capital F equals to f small f into z into n। ठीक है, so this capital F will be equals to small f, that is 0.10 into f, that is sorry z, that is 8 into 150। ठीक है, so simple है, कैलकुलेट करिए। ठीक है, तो 120 I'm getting, so this will be equals to 120 mm per minute। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं गेट में, आसान है। नेक्स्ट इज ये मैं करा देता हूँ, हालांकि सेम है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, ईएस का क्वेश्चन है। ठीक है, स्ट्रेट टीथ slab milling cutter having diameter of 100 mm, z, that is teeth is given to you, that is 10 teeth rotating at 200 rpm, so the value of n is given to you, is used to remove a layer of 3 mm thickness, 3 mm thickness from a steel bar। इसका मतलब क्या है, एक बार है आपके पास, ठीक है, and you are removing 3 mm, it means depth of cut is given to you, that is 3 mm। ठीक है, the table feed is 400 mm per minute, so the value of capital F is given to you, the feet per tooth will be equals to, तो सेम कंसेप्ट है आपका, सेम फॉर्मूला, दैट इज कैपिटल F इक्वल्स टू F into Z into n। तो यहाँ से स्मॉल f कैलकुलेट करना है आपको पर टूथ, सो दिस विल बी इक्वल्स टू कैपिटल F by Z into n, दोनों वैल्यूज आपको गिवन है, सो कैपिटल F इज 400,
ठीक है, upon z that is 10 and n is how much, that is 200. So this will be twice and this will be 0.2, so this will be 0.20 mm. Okay, so the option will be A. ठीक है, सेम कंसेप्ट है इसमें भी आपको फीट पर टूथ कैलकुलेट करना है, सो दिस इज फॉर योर होमवर्क, फाइन। ओके, नेक्स्ट इज गेट का क्वेश्चन है, तो इसको मैं करा देता हूँ। A block of length 200 mm is machined by a slab milling cutter। देखिए स्लैब मिलिंग है तो मान लीजिए आपको हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट है, ठीक है, तो आपको लेंथ दी है वर्कपीस की, ब्लॉक की, एंड diameter is 34 mm, ठीक है, in diameter. The depth of cut and the feed are set as depth of cut is 2 mm and the feed is given to you, capital F is given to you, that is 18 mm per minute, okay, respectively. Considering the approach and over travel of the cutter to be same, ठीक है, दोनों सेम है, जैसा कि हमने अभी कैलकुलेट भी किया है। The minimum estimated machining time per pass, एक सिंगल पास के लिए आपको टाइम कैलकुलेट करना है, so the machining time will be equals to L upon twice A upon F into Z into M, ठीक है। देखिए तो अप्रोच आपका सिंपल है, हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन हॉरिजॉन्टल है, तो विड्थ कैलकुलेट करने की, विड्थ को चेक करने की जरूरत नहीं है, वैसे विड्थ दिया भी नहीं है इसमें। सो सिंपल जस्ट फर्स्ट कैलकुलेट द अप्रोच वैल्यू, दैट इज रूट स्क्वायर स्मॉल डी माइनस कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसमें वैल्यू रखिए, आपको फॉर्मूला तो पता है ही। सो व्हेन यू विल पुट द वैल्यू, दिस विल बी इक्वल्स टू स्मॉल डी इज हाउ मच, दैट इज 2 mm into 100 diameter of this one, that is 34, ठीक है, 34 minus 2, ठीक है, 32 into 2, that is 64 and 64 square root, that is 8 mm, ठीक है। सो दिस इज टोटल लेंथ। देखिए f आपको दिया है, f आपको नहीं, देखिए ये आपको इंडिविजुअल टर्म्स ना देके आपको डायरेक्टली कैपिटल F की वैल्यू गिवन है, ठीक है, तो F into Z into N होता ही क्या है आपका डायरेक्टली कैपिटल F, तो सिंपल है, दिस TM will be equals to L, आपका टोटल लेंथ कितनी है ब्लॉक की, दैट इज 200, सो दिस इज 200 प्लस 2 into 8, ठीक है, अपॉन कैपिटल F, सो दिस इज 18। आपको इसमें कैलकुलेट करना है इन मिनट्स, सो दिस विल बी इक्वल्स टू, I have calculated this value, so this value will be equals to 12 minutes. Okay, this is TM. Fine. आसान है, सब आसान ही है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। So let's move to the next problem, that is asked in GATE 2019. Okay, so the length, width and the thickness of the steel sample are 400। देखिए लेंथ आपको गिवन है, ये आपका विड्थ है, दैट इज W, एंड द थिकनेस दैट इज हाइट कह लूं मैं यहाँ पे क्योंकि थिकनेस से कंफ्यूजन ना होना, ठीक है, तो दिस इज H, ओके। दिस इफ its thickness needs to be uniformly reduced by 2 mm in a single pass by using horizontal slab milling, ठीक है। तो देखिए आपको डेप्थ ऑफ कट क्या है, 2 mm है, और आपको सिर्फ 2 mm ही उससे रिड्यूस करना है, ठीक है, क्योंकि इसमें बोला है कि ना सिंगल पास, the thickness, its thickness needs to be uniformly reduced by 2 mm, 2 mm ही आपको करना है और in a single pass करना है, ठीक है। The milling cutter which is the diameter is 100 mm capital D and the width of the milling cutter, देखिए ये जो width थी ये आपकी वर्क पीस की थी, अभी तक हमने ऐसा कुछ सेपरेट अलग अलग नहीं किया है, ठीक है। तो मान लीजिए कि लेट्स सी आपका ये width है वर्क पीस की, ठीक है, तो और ये आपका मिलिंग कटर की, तो मैं इसको C से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, WC से, ओके, एंड हैज अ 20 teeth, so Z 20 teeth and rotates at 1200 rpm, so the value of capital N is given to you, feet per tooth means value of small f is given to you, that is 0.05 mm, the feed direction is along with the length of the sample, ठीक है। मतलब इसमें क्या है, बेसिकली आपको देखिए एक ब्लॉक दिया हुआ है, एक ब्लॉक इस तरह से दिया हुआ है कि ये आपका एक ब्लॉक है कि जिसकी लेंथ भी दिया है, आपको विड्थ भी दी है और जिसकी कुछ थिकनेस भी है। तो अब इसमें क्या है कि देखिए मशीनिंग जब होती है, मान लीजिए ये आपका आपने इस तरह से कटर माउंट किया हुआ है, तो ये जो कटर है तो ये इस तरह से भी मूव, ये इस तरह से भी मूव हो सकता है और ये इस तरह से भी मूव हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आपको
आपको रिमूव क्या करना है, ऊपर का 2 mm रिमूव करना है यहाँ से, तो ये इस तरह से भी मूव कर सकता है, मतलब आप फीड जो है उसको इस तरह से भी दे सकते हैं, या फिर फीड आपको इसको इस तरह से भी दे सकते हैं, बट इसमें मेंशन किया है कि द फीड डायरेक्शन इज अलोंग द लेंथ, मतलब अलोंग द लेंथ आपको चूज करनी है, ठीक है। इफ द ओवर ट्रेवल distance is same as the approach distance, the approach distance and time taken to complete the required machine time task are, देखिए अप्रोच भी फाइंड आउट करना है और टाइम भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहले हम अप्रोच फाइंड आउट कर लेते हैं। सिंपल आपका हॉरिजॉन्टल स्लैब मिलिंग है, तो स्लैब मिलिंग के लिए देखिए ये बेसिकली मैं इसको थोड़ा सा ये बता देता हूँ। देखिए इस तरह से आपका है, आपको 2 mm यहाँ से रिड्यूस करना है, ठीक है। तो आपका जो कटर की डायमेंशंस के मान लीजिए ये आपका स्पिंडल है, ठीक है, एंड ये जो आपका स्पिंडल है इट हैज 100 mm डायमीटर एंड इट हैज द विड्थ व्हिच इज WC दैट इज 50 mm। तो मान लीजिए कि अगर ये जो विड्थ है आपकी, इफ दिस इज 40, देन आपका जो टूल का विड्थ है दैट इज टूल विड्थ इज 50। तो आपका इससे क्या है, आपका वर्क पीस से इसका जो विड्थ है वो थोड़ी ज्यादा है, ठीक है। तो आप सिंगल पास में ही आपका पूरा क्या होगा, मटेरियल रिमूव हो सकता है, ठीक है। लिटिल बिट डिस्टर्बेंस इज देयर, ओके। सो इसका मतलब क्या है कि आपका इसका अगर 50 है तो आपका सिंगल पास में ही क्या होगा कि पूरा जो विड्थ के रेस्पेक्टिव में मटेरियल है वो पूरा एक सिंगल पास में ही आपका रिमूव हो जाएगा। सो देयर इज नो नीड ऑफ सेकंड पास, ठीक है। एंड इसमें मेंशन भी किया है कि वी हैव टू रिमूव दिस इन सिंगल पास, दिस 2 mm, ओके। सो डेप्थ ऑफ कट इज given to you, this depth of cut is 2 mm, ठीक है। So approach will be equals to, approach हम कैसे कैलकुलेट करते हैं स्लैब मिलिंग के लिए, this is small d into capital D minus small d, so just put the value that is small d that is 2 into capital D that is 100 minus small d that is 2, ठीक है। So this is root square 2 into 98, 2 into 98 that is how much, 196, and 196 root square that is equals to 14, ठीक है। सो दिस इज 14, सो द अप्रोच इज 14, आइदर ए ऑप्शन हो सकता है या फिर डी ऑप्शन हो सकता है, हमें कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। सो दिस मशीनिंग टाइम विल बी इक्वल्स टू TM विल बी इक्वल्स टू L प्लस 2 टाइम्स ऑफ A अपॉन F इनटू Z इनटू N, ठीक है। तो L नाउ दिस सॉरी स्मॉल l, नाउ स्मॉल l इज हाउ मच, आपको फीड डायरेक्शन इज अलोंग द लेंथ, मतलब आप टुवर्ड्स दिस साइड मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो लेंथ तो आपकी ये जो होगी दिस इज लेंथ, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 400 प्लस 2 into 14, ठीक है, अपॉन f, स्मॉल f is how much, that is 0.05 into z is how much, that is number of teeth that is 20 into n is how much, that is 1200 rpm, ठीक है। So when you will calculate, what I'm getting is I'm getting this equals to 0.3567 minutes, ठीक है। बट आपको उसमें सेकंड्स में पूछा है, सो जस्ट मल्टीप्लाई विद द 60 एंड व्हाट आई एम गेटिंग इज दैट इज 21.4 सेकंड्स, ठीक है। सो ऑप्शन विल बी डी, फाइन, इजी है। अब इतने इजी क्वेश्चन में आपको अगर 2 मार्क्स मिल रहे हैं तो आई थिंक यू शुड गो फॉर इट, ओके। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्योंकि दिस इज अ वंडरफुल प्रॉब्लम, ठीक है। लास्ट वाले प्रॉब्लम में क्या है, दिमाग नहीं लगाना था आपको, जो फॉर्मूला है उसको वैल्यूज पुट करिए, गेट द आंसर। इस वाले फॉर्मूले में थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। देखिए इसमें दिमाग यहाँ लगाना है कि आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको समझना है कि आपको करना क्या है इसमें, ठीक है। सो अ slot of 25 mm into 25 is to be milled, ठीक है। इस टू बी milled का मतलब क्या है कि ये स्लॉट आपको बनाना है, ठीक है, इन अ वर्क पीस ऑफ 30 mm लेंथ, ठीक है, यूजिंग अ साइड एंड फेस मिलिंग कटर, ठीक है। आपका फेस अगेन साइड एंड फेस है तो आपका हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन, हॉरिजॉन्टल है, ऑफ डायमीटर दैट इज 100 mm, ठीक है। सो डायमीटर इज गिवन टू यू एंड लेंथ ऑफ द वर्क पीस इज गिवन टू यू, ठीक है। width is 25 mm, that is W is given to you, having 20 teeth means Z is given to you, okay. For a depth of cut that is initially you have to keep the depth of cut that is 5 mm, ठीक है। feet per tooth that is small f is given to you, that is 0.10 mm, ठीक है।
Cutting speed is 35 meter per minute. So the value of capital V, that is pi dn upon 6 pi dn given to you. Okay, and the approach and over travel distance of 5 mm each, मतलब 5 mm आपका अप्रोच है, 5 mm आपका ओवर ट्रैवल है। अब देखिए मैंने आपको, जब मैं आपको प्रॉब्लम करा रहा था तब मैंने उसमें आपको ये बताया था कि दिस इज, आप जब मशीनिंग टाइम कैलकुलेट करते हैं, दिस इज टीएम, दिस इज स्मॉल एल प्लस स्मॉल ए प्लस ओ प्लस जो भी इसके अलावा है, दैट इज अप्रोच। ठीक है, तो ये जो अप्रोच था हमने 2a लिखा था, एफ इंटू जेड इंटू एन। मैंने क्या कहा था आपको, अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन में अगर आपको ये गिवन है स्मॉल ए प्लस ओ, तब भी आपको क्या करना है, ये चीज को कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब उस केस में क्या हो सकता है कि मान लीजिए अभी जो हमने पहले किया उससे मैं समझा देता हूं। मान लीजिए कि ये केस में हमने कैलकुलेट किया था, तो इस केस में आप ये कह सकते हैं कि आपने क्या किया है कि ये भले ही आपका ये वर्क पीस है, ठीक है, बट आपने स्टिल आपको टूल को यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आपने मान लीजिए कि टूल को यहाँ पे रखा हुआ है, मींस दिस इज एक्सेसिव अमाउंट यू हैव ट्रैवल, तो ये जो एक्सेसिव अमाउंट है ये ट्रैवल कौन सा करना है, जो आपको दिया हुआ है, मतलब 5 mm जो आपको दिया हुआ है, मतलब इतना स्मॉल है, आपको इनिशियली चलना है, ट्रैवल करना है वर्क पीस को, देन अगेन एट द एंड आल्सो यू हैव टू कवर दिस ओवर ट्रैवल। ठीक है, एंड आफ्टर दैट मतलब आपका जो वर्क पीस होगा दैट विल रीच अप टू हियर, फाइन। सो दिस इज लाइक, अगर यहाँ पे आप इसको सेट करेंगे देन दिस अप्रोच नो डाउट यू हैव टू कवर। ठीक है, तो ये अप्रोच जैसा कि हमने कैलकुलेट किया था, तो दिस अप्रोच इनिशियली आल्सो यू हैव टू कवर, मींस यू हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम हियर, first this approach, then this approach, then this length, then over travel, then this approach again। ठीक है, so please keep in mind this thing। अगर आपको प्रॉब्लम में गिवन है, दिया है, then you have to use it। okay, ऐसा नहीं है कि now you will not use this one, अगर आप ऐसा यूज नहीं करेंगे then you will not get the correct answer, fine। so now approach is L is given to you, approach is given to you, over travel is given to you, this capital A we have to find out। so this capital A will be equals to how much, that is root square d into capital D minus small d। ठीक है, so this will be equals to root square d is how much, that is depth of cut is 5 mm। ठीक है, तो 5 mm into capital D is how much, diameter of the cutter, that is 100 mm, 100 minus 5 small d। ठीक है, तो आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे, so I have not calculated, so 100 minus 5 into 5, so root square, that will be equals to, what I am getting is that is 21.7945 mm। ठीक है, so this is approach। ठीक है, देखिए अब ओके, सो इससे कैलकुलेट करते हैं, tm will be equals to L, that is approach length आपको कवर करनी है, so this is 300 mm प्लस अप्रोच आपको 5 गिवन है, ओवर ट्रैवल आपको 5 गिवन है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ द अप्रोच व्हाट यू हैव कैलकुलेटेड थ्रू द टूल, दैट इज 21.7945 अपॉन f is how much, f is 0.10 into z, that is 20 is given to you, and rotational speed is not given to you, but we know that this will be equals to pi into d into n। ठीक है, तो यहाँ से d कैलकुलेट n कैलकुलेट कर लीजिए, so this will be equals to b upon pi into d। अगर आपका ये mm में है then you should keep this in mm as well। okay, so this will be v, that is v is how much, that is 35 into 10 to the power 3 अपॉन में है pi into d, तो मैं इसको ऊपर ले लेता हूँ, that is pi into, ये पूरे के मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, pi into d is how much, that is 100 mm। ठीक है, so just calculate it, so this will be 300 plus 5 plus 5 plus 2 into 21.7945। okay, so this will be like, I'm getting 353, this is 353.589। ठीक है, this complete, this value I'm getting, okay, into pi into d। ठीक है, अपॉन इसको रख लीजिए, that is 35 into 1000 into 20 into 0.10। ठीक है, so this I'm getting 70,000। ठीक है, so just when you will calculate it, d की वैल्यू भी आपने रख दी है यहाँ पे, that is into 100 mm, so this will be equals to like 353.589 into pi into 100। ठीक है, so upon 70,000। ठीक है, so this what I'm getting is that is 1.5869 minutes। ठीक है, आपको मिनट्स में ही कैलकुलेट करना है, और अप टू रनिंग ऑफ
1 डेसिमल, तो 1 डेसिमल विल बी इक्वल्स टू TM विल बी इक्वल्स टू 1.6 मिनट्स। ठीक है, अगर आपने ये आंसर कर दिया है तो ये आंसर जो है आपका, अगर आपने ये आंसर मार्क करके लिख दिया है और सेव कर दिया है, देन दिस विल बी द रॉन्ग आंसर। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए आपने इसमें ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल सही अप्रोच है आपकी, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सब सही है। ठीक है, बट क्या है कि आपको एक स्लोट बनाना था, दैट इज ऑफ 25 बाई 25 mm। ठीक है, ये जो इसने थोड़ा सा ट्रिकी दिया है, यही आपको समझना था इसमें, 25 बाई 25 mm और थ्रू आउट द लेंथ बनाना था। तो इसका मतलब क्या है मैं समझा देता हूँ कि मान लीजिए कि आपके पास ये वर्क पीस है। ठीक है, ये आपका 300 mm लेंथ का है। ठीक है, ठीक है, अब इस पे आपको एक स्लोट बनाना है, दैट इज ऑफ 25 बाई 25। ठीक है, 25 बाई 25 का। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, एक इस तरह का स्पिंडल, देन ओवर दैट द स्टूल इज माउंटेड। तो अब ये आपका मान लीजिए कि ये इसकी आपकी लेंथ जो है दैट इज 300। ठीक है, अब इसके बीच में मान लीजिए इसकी कुछ भी विड्थ हो सकती है या कुछ भी थिकनेस इसकी हो सकती है, बट वी हैव टू ग्रूव ऑफ 25 बाई 25। मतलब आपको इसमें साइड और फेस मिलिंग कटर यूज करना पड़ेगा। अगर नहीं भी कहता रहता, नहीं भी लिखा रहता, तब भी आपको एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, बिकॉज यू हैव टू मेक दिस ग्रुप। सो दिस मटेरियल शुड बी रिमूव फ्रॉम दिस साइड एज वेल एंड फ्रॉम दिस फेस एज वेल, जो भी आप जहां भी आप मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स बिलो साइड। ठीक है, ठीक है, सो ओके, तो ये आपको रिमूव करना है। दिस इज 25 बॉटम साइड एंड दिस इज 25। ठीक है, नाउ ये जो आपको विड्थ ऑफ द कटर दिया है, इसका रीजन यही है कि आपको ये जो आप कटर यहाँ पे यूज करेंगे, जो कटर आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं, मतलब मान लीजिए आपका स्पिंडल है, ओवर दैट यू हैव माउंटेड दिस कटर, तो इसकी जो विड्थ है वो भी 25 है। इसका मतलब क्या है कि विड्थ के लिए आपको दोबारा मूव करने की जरूरत नहीं है। मतलब मान लीजिए कि पहले आपने इस तरह से कुछ, मान लीजिए ये इसी तरह का स्लोट बनाना है, तो मान लीजिए ऐसा नहीं है कि आपने पहले इतना स्लोट बनाया, देन दिस स्लोट यू विल मेक फॉर द सेकंड पास, ड्यूरिंग द सेकंड पास, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपकी जो कटर है आपका, उसकी जो विड्थ है दैट इज 25 इटसेल्फ। ओके, दैट इज 25 इटसेल्फ। तो आपका ये जो है दिस इज 25। नाउ व्हाट इज डेप्थ ऑफ कट यू आर गिविंग, दैट इज 5 mm। तो अब इसको क्या, आप कटर को मूव कर रहे हैं नीचे की साइड में, दैट इज जस्ट 5 mm ओनली। ठीक है, ये आपका कटर है। तो अगर मान लीजिए ये आपका पूरा कितना था, कितने का स्लॉट बनाना है आपको, 25 बाई 25 का, तो 25 विड्थ तो हो गई, लेकिन डेप्थ कितनी कवर किया आपने, 5 mm। आपको डेप्थ ऑफ कट कांस्टेंट दी है, तो मान लीजिए फर्स्ट आपने 5 mm रिमूव किया, देन सेकंड पास यू हैव टू मूव, देन दैट यू विल रिमूव that again 5 mm, so that will total 10 mm, again you will remove 5 mm, again you will remove 5 mm, and again you will remove 5 mm। तो इस तरह के आपको you have to give 5 passes from initial to end। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो आपने टाइम कैलकुलेट किया है, this is just for the one pass। now you have to calculate for the 5 passes, so what you have to do, you just have to multiply with the 5। okay, so when you will multiply, this will be equals to 8, so the 8 minute is the final answer। okay, 8 minute is the final answer। ठीक है, so please keep in mind these things while doing these problems, these are wonderful problems, wonderful problem। okay, okay, let's move to the next one। देखिए इस ये जो प्रॉब्लम है, दिस डेटा इज गिवन टू यू, हम इसको थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, बट इसमें कैलकुलेट क्या करना है, दैट इज अ मीन अनडिफॉर्म्ड चिप थिकनेस। ये चीज हमने कैलकुलेट नहीं की है, तो मैं इसको थोड़ा आपको कंसेप्ट समझा देता हूँ। मैं इसके लिए पैच यहाँ ऐड कर देता हूँ, सो दिस विल बी इजी। ओके, देखिए मैं इसको यहाँ पे समझा देता हूँ कि अनकट चिप थिकनेस आपको जो कैलकुलेट करना वो है क्या, दैट इज ठीक है, जस्ट मान लीजिए ये आपका कटर है, हालांकि वो सर्कुलर नहीं है, बट जस्ट राइट ले लीजिए, ये आपका एक सर्कुलर है। ठीक है, इनिशियली इट इज कमिंग इन कांटेक्ट विद दिस पोर्शन। ठीक है, तो मान लीजिए इस तरह से आपका रोटेट कर रहा है, यू आर गिविंग फीड टुवर्ड्स दिस साइड। तो इनिशियली आपका देखिए, आप चाहे अप मिलिंग की बात करें चाहे डाउन मिलिंग की बात करेंगे, अगर अप की करेंगे तो हम मैक्सिमम पहले लेंगे, जीरो बाद में लेंगे, और डाउन की करेंगे तो जीरो पहले लेंगे, मैक्सिमम बाद में लेंगे। तो आप किसी की भी बात करें, ओवरऑल जो कंसेप्ट है वो तो सेम ही है दोनों के लिए। ठीक है,
देखिए यहां से क्या कर रहे हैं हम लोग, फर्स्ट, ठीक है, ये जो है दिस इज दिस पॉइंट, तो जब ये यहाँ पे होगा, ठीक है, व्हेन वी आर रोटेटिंग दिस वन एंड गिविंग द फीड, दिस इज, ये जो आपका रिमूवल ऑफ द चिप है ये इस तरह से इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। तो अब क्या है कि देखिए आप इसमें यहाँ पे आपका जो थिकनेस है, मतलब चिप थिकनेस है वो अलग है, यहाँ पे आपकी जो देखिए ये जो थिकनेस है ये वेरी होती जा रही है, ठीक है, थोड़ा मैं इसे समझा देता हूँ। देखिए यहाँ से आपका क्या करिए, ये जो गैप है ये इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो चिप थिकनेस है ये इस डायरेक्शन में है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में है आपकी, इस तरह इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जाके ये मैक्सिमम हो गई है, तो देखिए जीरो से लेके मैक्सिमम तक बढ़ा है, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे मीन टर्म यूज करते हैं या फिर एवरेज टर्म यूज करते हैं कि हम लोग एवरेज चिप थिकनेस कैलकुलेट करते हैं ना। अब एवरेज चिप थिकनेस हम अगर कैलकुलेट करना है तो देखिए थोड़ा सा ये थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर रहा हूँ लिटिल बिट, because again we are generalize something, so we have to take the things along accordingly. This is your workpiece, okay. So now this is the diameter, this is your maximum thing, okay. So this is your diameter, or the radius, sorry, and like this is your approach, okay. तो यहाँ पे मैं इसको O कह लेता हूँ, this is A, this is B and this is C, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं कि वी आर कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम, ओके, that is volume covered by the how much amount of the volume that has been removed in terms of the chip, ठीक है। तो in terms of the chip अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ then that will be equals to कि how much मीन्स उसकी width कितनी है, ठीक है, उसकी लेंथ कितनी है and how much thickness is there, okay. So this is width is nothing but जो भी हम लोग width हमेशा शुरू से हम लोग कांस्टेंट करके चले हैं, that is from the basic terminology itself, so this is W, ठीक है। आपका लेंथ जो होगा चिप का लेंथ मैं L मान लेता हूँ एंड जो एवरेज थिकनेस है मैं उसको T बार से कह लेता हूँ, ठीक है। देखिए जीरो से लेके T मैक्सिमम तक है, ठीक है। तो मैं जो एवरेज थिकनेस है दैट इज 0 प्लस T मैक्सिमम बाई 2, सिंपल सा कंसेप्ट है, उसको मैं T मैक्स बाई 2 कह रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट दिस इज T बार, ठीक है, ये एवरेज आपकी थिकनेस है या फिर मीन थिकनेस है। नाउ दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द चिप दैट इज रिमूव्ड फ्रॉम द वर्कपीस। नाउ ये जो L है, ये L क्या है, ये L है यहाँ से लेके B से लेके C तक, ये आपकी टोटल चिप है, मतलब आपकी चिप्स है, चिप है बाय वेरिंग द थिकनेस। तो जो वेरिंग द थिकनेस जो चिप है, लेंथ ऑफ दिस विल बी इक्वल्स टू B इनटू C, ये जो आपके आर्क होगी, या फिर मान लीजिए कि आर्क को कैलकुलेट करना थोड़ा टिपिकल है तो मैं इसको एक स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर लेता हूँ, क्योंकि वैसे भी वो बहुत स्मॉल अमाउंट में होगी, ठीक है। तो मैं उसको यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन से कंसीडर कर लेता हूँ। तो मुझे इस स्ट्रेट लाइन को कैलकुलेट करना है, मतलब इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले दैट इज पहले मुझे देखिए ये जो है, ये पूरी जो टर्म है दैट इज D/2, और ये जो होता है दैट इज स्मॉल d, दैट इज डेप्थ ऑफ कट, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, OA दैट विल बी इक्वल्स टू कैपिटल D/2 माइनस स्मॉल d, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ से देखिए D/2 मुझे पता है, OA की वैल्यू मुझे पता है, तो मैं यहाँ से AC कैलकुलेट कर सकता हूँ, दैट इज नथिंग बट द अप्रोच ओनली। तो यहाँ से अगर मान लीजिए ये जो है AB दैट इज डेप्थ ऑफ कट, तो मैं यहाँ से BC कैलकुलेट कर सकता हूँ। सो BC square will be equals to that will be AB square, because this is the hypotenuse square, will be equals to perpendicular plus base, so this is AC square, ठीक है। Now AB is how much, that is small d square, ठीक है, और AC is how much, that is AC is how much, this will be equals to hypotenuse square minus this square, so this is D/2 whole square minus, ठीक है, D/2 होल स्क्वायर माइनस D/2 माइनस स्मॉल d होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे, सो दिस इज D स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाई 4 माइनस D स्क्वायर बाई 4 माइनस D स्क्वायर प्लस D इंटू स्मॉल d, सो दिस विल बी कैंसल आउट, दिस विल बी कैंसल आउट, ठीक है। सो दिस व्हाट इज रिमेनिंग, BC will be equals to root square capital D into small d, ठीक है। So this is the length, that is length of the chip, okay. So from this volume will be equals to, volume of the chip will be equals to W into root square capital D into small d into
टी बार, ठीक है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो ये क्या हुआ, दिस इज मटीरियल दिस द चिप, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल व्हिच इज रिमूव्ड फ्रॉम द वर्कपीस सरफेस, ठीक है। तो मैं देखिए ये तो क्या था बेसिकली, आप देखिए दो तरीके से मटेरियल कैलकुलेट किया जा सकता है कि किस तरह से कितना मटेरियल आपने रिमूव किया। पहला जो तरीका है कि आपकी जो चिप है, मतलब जो आपका स्क्रैप मटेरियल है, आप उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लीजिए। या फिर क्या करिए कि मान लीजिए आपने यहाँ पे विड्थ ऑफ का जो इसका विड्थ है, या फिर जो इसका डेप्थ ऑफ कट आपने लिया है, जो कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया रहा होगा, देन यू आर गिविंग अ फीट टुवर्ड दिस साइड। तो उससे क्या कर सकते हैं आप लोग, फीट मींस दिस टाइम दिस इज, हाँ, you are giving a feed toward this side, so from that you can get the actual volume, that initially how much volume was there and finally how much volume is there, means finally means initially means जो depth of cut जब आपने removal start नहीं किया है, that time how much volume you are taking initially to remove the material, okay, the material which is we have to remove from the workpiece surface, and finally जो आपका scrap material है, मतलब जो chips है available है, वो कितने amount में आपकी available है, ठीक है। so ये तो हो गया आपका चिप के इतने वॉल्यूम आपकी चिप की अवेलेबल है, ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे चिप लेंथ भी कैलकुलेट किया है, आपने एवरेज थिकनेस भी कैलकुलेट किया है, मतलब कंसीडर किया है, ठीक है। नाउ व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग दिस वॉल्यूम, इनिशियली आपका क्या वॉल्यूम रहा होगा, दैट टाइम दिस विल बी विड्थ इनटू डेप्थ ऑफ कट, दैट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, एंड दैट इज द फीड। नाउ दिस देयर आर टू टाइप्स ऑफ द फीड, दैट इज फर्स्ट इज कैपिटल एफ एंड स्मॉल एफ, दैट इज दिस इज द mm per minute and this is an mm, ठीक है, बट दिस इज फीट पर टूथ, ठीक है। तो अब आपका अगर आप इसको लेते हैं, देन दैट विल वो जो दैट व्हेन यू विल टेक दिस कैपिटल एफ, दैट टाइम यू विल कैलकुलेट हाउ मच अमाउंट ऑफ द वॉल्यूम इज रिमूव्ड पर यूनिट टाइम, बट आपको वो कैलकुलेट नहीं करना है, आपको मटेरियल रिमूवल रेट कैलकुलेट नहीं करनी है, ओके। आपको हाउ मच मटेरियल रिमूव दैट यू हैव टू कैलकुलेट, रेट नहीं कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो दैट टाइम यू हैव टू कैलकुलेट, यू हैव टू टेक दिस एफ, सो दिस विल बी स्मॉल एफ, ठीक है। So this is the amount that we have to remove, and this is the amount that has been removed. Okay, is it clear to you? Now, ये वॉल्यूम आपका पहले था, ये वॉल्यूम आपका बाद में है, so both will be equal, ठीक है। So this is W into D into small f will be equals to W into root square capital D into small d into T bar. So this will be cancelled out, and from this you can calculate the average chip thickness, that is F into d by root square capital D into small d, ठीक है। तो जब आप इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे, so this will be T average will be equals to F into root square small d by capital D, ठीक है। देखिए अब आप इसमें अगर मान लीजिए कि आपको F स्मॉल f नहीं दिया है, आपको कैपिटल F दिया है, तो we know this capital F is equals to small f into z into n, तो यहाँ से स्मॉल f की वैल्यू रख दीजिए। सो व्हेन यू विल पुट दिस वैल्यू, दिस विल बी इक्वल्स टू t bar will be equals to capital F by z into n into root square small d by capital D, ठीक है। तो ये आप रख सकते हैं, ठीक है। नाउ ये जो था आपका, दिस इज एवरेज थिकनेस, आप यहाँ पे मैक्सिमम थिकनेस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो मैक्सिमम विल बी इक्वल्स टू 2 times of t bar, so this maximum average cutting thickness will be equals to 2 times of a capital F upon small z into n upon, sorry, into root square by capital D by, sorry, small d by capital D, ठीक है। So this is another formula for that, okay. So this is for the maximum chip thickness, this is for the average chip thickness, please keep in mind this formula, fine. Let's move to the problem part. Okay, so data for the plane milling operation are given below. The length of the workpiece is 200 mm, so this is L is given to you. Cutter diameter, that is capital D, is given to you 100 mm. Number of teeth, that is Z, is given to you. Cutter speed is 100 rpm. देखिए अब सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, आरपीएम में गिवन है तो वो स्पीड ना होके वो रोटेशनल स्पीड है, ठीक है। सो दिस इज n, not cutting speed, ठीक है। Feed, that is capital F, is given to you. Depth of cut, that is small d, is given to you. Total clearance at the exit and the entry, मतलब देखिए अब आपको इंडिविजुअल नहीं दिया है, आपको टोटल दिया हुआ है, that is 5 mm, ठीक है। मीन अनडिफॉर्म चिप थिकनेस यू हैव टू कैलकुलेट इन माइक्रोन, ओके। तो मीन कैसे कैलकुलेट किया था हमने, या तो हमारे पास ये फॉर्मूला, दैट इज स्मॉल f इनटू रूट स्क्वायर स्मॉल d बाय कैपिटल T, या फिर अगर कैपिटल F की टर्म में रखें तो दिस इज z बाय n इनटू रूट स्क्वायर स्मॉल d बाय कैपिटल D, ठीक है।
तो देखिए स्मॉल एफ नहीं गिवन है आपको, कैपिटल एफ गिवन है, तो ये वाला फॉर्मूला टर्म्स यूज कर लेते हैं, ठीक है। मीन ही कैलकुलेट करना है, सो देयर विल बी नो नीड टू राइट ट्वाइस ओवर हियर, ओके। सो दिस टी एवरेज विल बी इक्वल्स टू एफ इज हाउ मच, दैट इज 200, ठीक है, mm per minute, z is how much, that is number of teeth, so this is 4, n is how much, that is 100 rpm into root square small d is how much, that is depth of cut is 2 mm upon diameter, so diameter is how much, that is 100. So when you will calculate, I have not calculated, so I am calculating this one, so this will be equals to this is 400, okay, so this is what I am getting is, that is देखिए आपका यहाँ पे ये mm में था, ठीक है, so whatever the things that you will get, value that you will get, that will be in mm only, okay, so this will be 0.0707, okay, so this is I am getting, okay, that one, that is in mm, but आपको पूछा किसमें है, माइक्रोन में, तो 10 raised to power minus 3, okay, so this will be 1 2 3, so this will be like 70.71 10 raised to power minus 3 mm, ठीक है, so this will be micrometer, okay, or micron. So again देखिए 70 तो नहीं दिया है, but approximate value given है, so this will be equals to 70 microns, right? So this will be the answer, option C. Next is machining time for a single pass. Common data question है, data को नहीं read कर रहा हूँ, we are calculating this TM. So this TM will be equals to small l plus approach and over travel आपको given है, दोनों combinedly given है आपको 5 mm, okay. Now 2 times of the A upon capital F आपको direct given है, so I am writing that one, okay. So first of all approach will be equals to root square small d into capital D minus small d, ठीक है, क्योंकि plane milling की बात हो रही है, so capital small d will be equals to 2 into capital D, that is 100 minus 2 small d. So again 100 minus 2, that is 98, 98 into 2, that is 196, and root square of 196, that is equals to 14 mm, ठीक है. Now just put the value, that is Tm will be equals to small l, that is 200, ठीक है, plus approach plus over travel, so this is total entry upon 2 into 14, ठीक है, upon f direct value is given to you, that is 200, okay. So this will be equals to 2 into 14 plus 5 plus 200, okay. So this is 233 upon 200, okay. So this is like I'm getting, this is 1.165 minutes, ठीक है, बट आपको यहाँ पे सेकंड में कैलकुलेट करना है, so just multiply with the 60, so you will get it like what I'm getting is, that is 69.9, ठीक है, that is in seconds. Let me check. 14 into 2 plus 5 plus 200, okay, so this is 233 divided by 200, so that is 1.65, that is 60, okay. So I'm getting this 69.9 seconds, okay, and almost you can consider it as a 70 seconds, but the nearest answer is 66 seconds. ये क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें देखिए बाय द वे आपको जो प्रोसेस है वो यही फॉलो करना है, बट जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा था कि मान लीजिए कि कभी कभार आंसर नहीं मिलता है, तो आप एक काम करिए कि ये जो आपने कैलकुलेट किया है इसको मत रखिए, आप सिर्फ इन्हीं दोनों को से कैलकुलेट करिए. सो व्हेन यू विल कैलकुलेट इट, दिस विल बी 200 plus 5, so this will be 205 upon 200. So what I am getting is, that is 1 point, in this case मतलब जब मैं इन दोनों को कंसीडर करता हूँ, that time I am getting, that is 1.025, that is in minutes. So when I will multiply with the 60, I will get this 61.5 mm, ठीक है. और मान लीजिए कि अगर इसको 10 कंसीडर होता, 10 होता है यहाँ पे, so this will be 210 divided by 200, ठीक है, into 60. So this will, that time you will get, अगर मान लीजिए कि 2 times कर रहे हैं, so that time it will be 63. और मान लीजिए कि अगर आप इसको कंसीडर नहीं करते हैं एंड आप सिर्फ इसी को कंसीडर करते हैं, तो that will be 28 plus 200, that will be 228 divided by 200, okay. So that time 1.14 into 60, so that will be 68.4, ठीक है. देखिए ये सारे जो आंसर हैं ये सारे एक दूसरे से अलग अलग हैं. अलग अलग रीजन ये है कि किसी में आप स्मॉल ए की वैल्यू को कंसीडर कर रहे हैं, किसी में आप उसको ट्वाइस कंसीडर कर रहे हैं, किसी में कैपिटल ए कंसीडर कर रहे हैं, किसी में नहीं कर रहे हैं, ठीक है. सो दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग, बट एट द एंड वी आर गेटिंग, दैट इज 70, सो द नियरेस्ट विल बी 66 आंसर, सो द ऑप्शन विल बी बी, ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आस्क्ड इन गेट 2014 session 4,
Okay, so that this question I'm giving you in the homework. Okay, this is a very easy question. By the way, I will discuss it into the starting of the next video as well. Okay, so this is, thank you so much guys for joining this lecture. See you soon.